बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बात की थी गॉलस्टोन डिज़ीज़ की मैनेजमेंट के सिलसिले में, और आज हम बात करेंगे अबाउट द डिजीज़ ऑफ एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी अपरेटस। जो दो कॉमन डिजीज़ जिनकी हम बात करने लगे, एक तो वही है अगर देयर इज़ कोलिडोकोलिथिएसिस, स्टोन इन दी extrahepatic biliary apparatus, and the second is an important condition which is known as the choledochal cyst. So choledocholithesis जो भी source है stone का, primary choledocholithesis is a known condition. It is possible that even after cholecystectomy, because of various reasons, the stone may form in the choledochus, the extrahepatic biliary apparatus as well, or it may be in the presence of gallbladder. There can be gallstones which can be shifted into the extrahepatic biliary channels and cause their various signs and symptoms. As we know, yesterday we talked in detail about the obstructive jaundice, which is caused by a stone in the common bile duct or the extrahepatic biliary apparatus. Now the important thing to remember is कि हमने कल भी बात की थी इसकी कि stone के अलावा भी there are other causes which can cause obstructive jaundice, and जैसे कि किसी भी luminal structure के अंदर जब हम obstruction की बात करते हैं, so the obstruction can be within the lumen itself, the causes can be in the wall, or the causes can be outside the wall. So the causes in the wall can be stricture, which can be benign, acquired, or it can be malignant. Outside the wall there can be, let us say, a tumor in the head of the pancreas which is pushing on the common bile duct externally, or it can be Meredith syndrome, a stone within the gallbladder but it is pressing on the common bile duct and causing obstruction, or it can be, a most common reason can be a stone within the lumen of the common bile duct or the extrahepatic biliary apparatus. So what do we do? हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है और उसको मैनेज कैसे करना है, हम इसकी बात थोड़ी सी पहले भी कर चुके हैं. आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोसिस वुड रेस्ट ऑन ऑफ कोर्स द हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड investigations. So the patient would give us history of obstructive jaundice. जब हम obstructive jaundice की हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें पेशेंट हमें क्या बताता है? इसमें हमें बताता है कि जो jaundice के साथ साथ पेशेंट को itching होती है, पेशेंट clay colored stools पास कर रहा होता है, पेशेंट dark colored urine पास कर रहा होता है, and there can be some evidence of increase in the clotting time. Then this obstructive jaundice can lead to cholangitis. Cholangitis की हमने कल बात की थी. जो cholangitis, Charcot striate, pain right upper quadrant, fever with rigors and jaundice. Or the common bile duct stones can cause pancreatitis, which is a potentially fatal disease. कैसे करता है? अगर डिस्टल एंड पे जाके फंसा होता है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से पेंटअप सिक्रीशंस होती हैं पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर, दैट कैन सब्सिक्वेंटली लीड टू एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हेंस पेनक्रियाटिस. और देयर कैन बी Meredith syndrome, which are the various stages in which there can be fistulation between the common bile duct and the gallbladder itself, or it has various stages. So today I think your quiz assignment would be along the Meredith syndrome as well. They can be silent and फाउंड आउट इंसिडेंटली. आपने किसी और चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पेशेंट को जॉन्डिस भी नहीं हुआ, आप कहेंगे अगर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन है तो पेशेंट को जॉन्डिस क्यों नहीं हुआ? So the reason may be that the size of the stone may be smaller than the lumen of the common bile duct, and it may not be obstructing the CBD completely, and the bile may be easily going into the duodenum. और the obstruction may be transient. पेशेंट हिस्ट्री देता है कि जी आँखें पीली होती हैं, जिस्म पे खारिश होती है, क्ले कलर्ड स्टूल्स आते हैं, डार्क कलर्ड यूरिन आता है,
कुछ दिन ऐसा रहता है, दर्द होती है, उसके बाद मैं पहले से बेहतर रहता हूँ, दवाई करता हूँ, इलाज करता हूँ, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मिलती है, कोई एंटीबायोटिक्स मिलती है, इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाती है और एक दफ़ा फिर जो है ना बाइल को जाने का रास्ता मिल जाता है और पेशेंट का जो जॉन्डिस है वो बेहतर हो जाता है। तो कोई ऐसी और कंडीशन आपके जहन में आती है जिसके अंदर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ट्रांजिएंट हो और पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता और वो खुद से ठीक हो जाता? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजंस बिसाइड्स कॉमन बाइल डक्ट स्टोन? The other reason can be a malignancy, a cholangiocarcinoma, in which when the tumor is obstructing the lumen and subsequently there is necrosis of the tumor itself, और जब वो स्लफ ऑफ होकर निकल जाता है तो फिर ल्यूमन को थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाती है कि बाइल उसमें से पास कर सके। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आपने हिस्ट्री पे डिफ्रेंशिएट करना है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है ये स्टोन्स की वजह से है या मलिग्नेंसी की वजह से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पेन की हिस्ट्री के बारे में जानना। अगर पेशेंट को पहले बिलियरी कोलिक की और दूसरी चीज़ों की हिस्ट्री है तो इम्कान ये है कि पेशेंट को ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ है ये कॉमन बाइल डक्ट स्टोन्स की वजह से हुआ है। वेयर एज जब जॉन्डिस पहले हुआ और पेन सब्सिक्वेंटली बाद में हुआ तो फिर मलिग्नेंसी के बारे में आम तौर पे सोचा जा सकता है, क्योंकि जो मलिग्नेंसी का जॉन्डिस होता है उसको हम कहते ही पेनलेस जॉन्डिस है, और जब पेनलेस जॉन्डिस होने के बाद पेशेंट को पेन होता है तो ये सब्सिक्वेंटली यूजली इसमें ये पता लगता है कि इट हैज़ ऑलरेडी इन्वेडेड द नियर बाय स्ट्रक्चर्स एंड इट इज़ इररिसेक्टेबल। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी हमने कल भी बात की थी वो ये थी कि अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है और गॉल ब्लैडर क्लिनिकली पैल्पेबल है, once again then it is very unlikely to be stones. Why? क्योंकि लॉन्ग टर्म जब से स्टोन्स होते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें जो गॉल ब्लैडर होता है वो कंस्ट्रिक्टेड होता है, वो पिचक जाता है, वो सूख जाता है, वो इस तरह से डायलेट नहीं होता। तो कर्वोजर्स लॉ की हमने कल बात की थी कि इफ इन अ जॉन्डिस्ड पेशेंट द गॉल ब्लैडर इज पैल्पेबल द कॉज इज अनलाइकली टू बी स्टोन। लेकिन याद रखें मेडिसिन में शायद ही कभी, नेवर होता है, शायद ही कभी, ठीक है। सो बिकॉज बायोलॉजिकल बिहेवियर ह्यूमन बीइंग्स के डिफरेंट होते हैं। मरीज़ किताबें पढ़ के नहीं आते, मरीज़ों को देख के किताबें लिखी जाती हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जो नेवर वाला लफ्ज़ है वो मेडिसिन में होने का इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर है, वो नेवर है, हो सकता है शायद। ऑल राइट, सो जब आप बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन को सस्पेक्ट कब करते हैं? जब क्लिनिकल फीचर्स होते हैं बिलियरी कोलिक विद जॉन्डिस के, और हमने जिनकी बाकी बात की, फैट सॉल्युबल विटामिन डिफिशिएंसी में विटामिन के डेफिशिएंसी, जो क्लॉटिंग के इश्यूज पेशेंट्स को आना शुरू होते हैं, इजी ब्रूजेबिलिटी होती है और वो आपको बताते हैं कि जी ब्लीड करना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल दांत साफ करते हुए मसूड़ों से। चारकोट स्ट्राइड की हमने बात की थी। असेंडिंग कोलोंजाइटिस के अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। फीवर विद राइगर एंड चिल होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के फीचर्स होते हैं और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होती है। और अगर इसके साथ मेंटल क्लाउडिंग हो जाए क्योंकि पेशेंट सेप्सिस में हो और उसको सेप्टिक शॉक हो रहा हो तो फिर हम उसको रेनॉल्ड्स पेंटार्ट कहते हैं, और ये पेशेंट्स जो है दे आर सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में होना चाहिए, इनको आईवी एंटीबायोटिक्स चाहिए, इनको फ्लूइड रिससिटेशन चाहिए, एंड सब्सिक्वेंटली यू नीड टू डीकम्प्रेस दी कॉमन बाइल डक्ट। डीकम्प्रेस करने के लिए आप एंडोस्कोपिकली कर सकते हैं, आप सर्जिकली कर सकते हैं, और सब्सिक्वेंटली डीकम्प्रेस करके जब पेशेंट इस काबिल हो जाए तो अल्टीमेटली दे वुड रिक्वायर सर्जिकल करेक्शन। अब मैनेज कैसे करते हैं गॉलस्टोन जो कि एक्स्ट्रापैटिक बिलियरी चैनल्स में पड़ा? हमने बात की थी पहले जब हमने इन्वेस्टिगेशंस की बात की थी, ईआरसीपी की बात की थी, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कॉलेंजियोपेनक्रियाटिकोग्राफी, और पीटीसी की बात की थी, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कॉलेंजियोग्राफी। तो अगरचे ये इन्वेस्टिगेशन है, इनका डायग्नोस्टिक है, मगर इन दोनों टेक्निक से आप स्टोन रिमूव कर सकते हैं। जब आप एक्सेस कर लेते हैं बिलियरी चैनल्स को, जब आपका गाइड वायर उस ल्यूमेन के अंदर चला जाता है तो फिर आप उस गाइड वायर के ऊपर बास्केट्स डाल सकते हैं, डॉर्मिया बास्केट्स डाल सकते हैं, या इवन देयर आर वेज एंड मीन्स जिसमें आप ESWL को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी इस्तेमाल की जा सकती है जो बड़े स्टोन को छोटा कर देती है और उनको छोटा करके फिर रिमूव करना आसान होता है थ्रू दिस लेसर इन्वेसिव मैनर्स देन ओपन सर्जरी।
इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो ऑफ कोर्स जब ऑब्स्ट्रक्शन के साथ इन्फेक्शन होगा तो टीएलसी बड़ा होगा, बिलीरुबिन ऑफ कोर्स टोटल एंड कॉन्जुगेटेड वुड बी रेज्ड, एएलटी जो है मार्केडली रेज्ड नहीं होंगे लेकिन मॉडरेटली रेज्ड होंगे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा जीटीएन 5' न्यूक्लियोटाइडेज दे वुड बी मार्केडली रेज्ड। यूरिन एनालिसिस में यूरिनरी बिलीरुबिन बढ़ा होगा और यूरोबाइलिनोजन नेगेटिव होगा। इमेजिंग फर्स्ट लाइन ऑफ कोर्स अल्ट्रासोनोग्राफी है जिसके अंदर इंट्रापैटिक बिलियरी चैनल्स की डायलिटेशन नज़र आ सकती है। लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देख लेते हैं, सीबीडी का पता लग जाता है कि कहाँ से टेपरिंग हुई है, कहाँ से शुरू है। लेकिन वंस अगेन चूँकि हमें पता है कि सीबीडी के कितने पोर्शंस हैं, सुप्राडूडनल, रिट्रोडूडनल, इंफ्राडूडनल एंड इंट्राडूडनल। तो जो ऐसा पोर्शन है जो कि जिसके सामने कोई गैस फिल्ड ऑर्गन नहीं पड़ा वो तो नज़र आ जाता है, मगर जो लोअर पोर्शन है सीबीडी का उसको देखना अल्ट्रासोनोग्राफिकली ज़रा दुश्वार होता है। लेकिन साइज़ का आपको पता लग सकता है। नॉर्मली हमें पता है कि 8 मिलीमीटर तक जो साइज़ है वो नॉर्मल होता है और उससे ज़्यादा जब हो जाए तो फिर वो एबनॉर्मल, हम कहते हैं कि डायलेट हो गया। अल्ट्रासाउंड में एमआरसीपी में जो इमेजिंग में हम 8 mm कहते हैं और ईआरसीपी में जो ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकता है क्योंकि वो ल्यूमन को अंदर से देख रहा है तो फिर वो 10 मिलीमीटर तक रखते हैं। एमआरसीपी हमें पता है, हेयर यू कैन सी कि इट इज़ नॉन इन्वेसिव एंड इट कैन गिव यू अ वेरी गुड आइडिया, पूरी मैपिंग करके आपको दे सकता है सारी इंट्राहेपेटिक बिलियरी चैनल्स की, कॉमन बाइल डक्ट की, cystic duct की, pancreatic duct की, how the junction is formed, how the junction is opening inside the duodenum as well। उसके अलावा ये आपको बता सकता है कि इसका ल्यूमिन कैसा है, इसका साइज़ क्या है, क्या कोई फिलिंग डिफेक्ट है जो कि स्टोन है, और इस पेशेंट में जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसका भी गॉल ब्लैडर इंटैक्ट है और गॉल ब्लैडर के अंदर भी स्टोन है और सीबीडी के अंदर भी स्टोन है। तो जो T2 सीक्वेंस होता है हमें पता है कि जब हम MRI कराते हैं तो 2 तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, एक T1 सीक्वेंसेस होते हैं और एक T2 सीक्वेंसेस होते हैं। आप लोग इसके बारे में तफसील से ख़ुद भी पढ़ लें, मगर मुख्तसर तौर पे वो ये है कि MRI में जब आप ह्यूमन बॉडी को एक ह्यूज मैग्नेट के साथ, ह्यूज मैग्नेट जो है वो अप्लाई करता है, बड़ी मैग्नेटिक फील्ड, तो सेल्स के अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे एक्ट एज small magnets and they align themselves as along with that magnetic field जो कि huge human body को उसने किया। उसके बाद आप एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स देते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स देने से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स अलाइन होते हैं ये अपनी जगह छोड़ देते हैं और जब पल्स गुजर जाती है तो ये वापस अलाइन हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दैट मैग्नेटिक फील्ड। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजिंग। एक जो T1 सीक्वेंस होता है वो उस वक्त होता है जब ये अपनी जो प्रोटॉन्स वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरा सीक्वेंस होता है जब ये वापस आ रहे हैं टू दैट अलाइनमेंट दे हैड टू दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो एक में वाटर वाइट होता है, फैट डार्कर होता है, दूसरे में वाटर डार्कर होता है, फैट वाइटर होता है। T2 सीक्वेंस के अंदर आप स्लो मूविंग फ्लूइड जो है जैसे ये बाइल है जो कि इसमें सफ़ेद दिखता है, आप देख सकते हैं इसमें सफ़ेद दिखता है। ये इसलिए सफ़ेद MRCP के ये सफ़ेद अपने खुद से जो सिग्नल्स दे रहा है उसकी वजह से इसमें कोई कंट्रास्ट इन्हेंसिंग चीज़ नहीं दी गई, ये बगैर कंट्रास्ट के किया जा रहा है। जो नॉर्मल बाइल है वही दैट इज़ एक्टिंग एज कंट्रास्ट एंड इज़ गिविंग यू द ट्रू पिक्चर ऑफ द होल ऑफ द एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी apparatus। So MRCP can be used to diagnose, then the treatment includes ERCP। जब तक ERCP नहीं थी तो हम कॉमन बाइल डक्ट को एक्सप्लोर करते थे सर्जिकली, इट कुड बी डन बाय ओपन सर्जरी और इट कुड बी डन लेप्रोस्कोपिकली, और एक्सप्लोर करने के बाद जब हम CBD से स्टोन निकाल देते थे तो उसके बाद T ट्यूब उसके अंदर प्लेस करते थे। अब ये लेप्रोस्कोपिक की जाती है। अभी तक हमें सर्जिकल कोलिडोकोलिथोटमी या सर्जिकल कॉमन बाइल डक्ट्स एक्सप्लोरेशन अभी भी की जाती है, लेकिन यूजली ये उन केसेस में की जाती है जिसमें ERCP फेल हो जाती है फॉर वट एवर रीज़न, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द स्टोन, बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्ट एनाटमी, बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ
कैनुलेट करने के फेलियर की वजह से, देयर सो मेनी रीजन जिसकी वजह से करनी पड़ सकती है। लेकिन अब जो मेन स्टे है CBD के अंदर स्टोन्स का वो ERCP है, फॉलोड बाय पहले ERCP कराते हैं और उसके बाद आप लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं पेशेंट्स हैविंग स्टोन्स इन दी कॉमन बाइल डक्ट। अब जो लैप्रोस्कोपिक CBD एक्सप्लोरेशन की जा रही है, आम तौर के उसके अंदर टी ट्यूब प्लेसमेंट नहीं करते। टी ट्यूब क्यों प्लेस करते थे? पहले ट्रेडिशनली टी ट्यूब इसलिए प्लेस की जाती थी कि CBD को एक्सप्लोर करने के दौरान जब आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पास करते हैं, स्पेशली एम्पल ऑफ वाटर के थ्रू जो इंस्ट्रूमेंट पास करते हैं, बेक्स डायलेटर या लंदन हॉस्पिटल डायलेटर्स, तो उसकी वजह से वहाँ पे एडीमा हो जाता है। एडीमा होने से एम्पुला ब्लॉक हो जाता है। तो सब्सिक्वेंटली हमें पता है कि 500 से लेके 100 ml तक 1000 ml तक जो है ना बाइल तो प्रोड्यूस होनी है। तो अगर आगे से एम्पुला ब्लॉक्ड है इन्फ्लेमेशन की वजह से और आपने CBD के अंदर आपने इंसिजन लगाया हुआ है, चाहे उस पर टांका भी लगाया हुआ है, लेकिन अगर आगे रास्ता नहीं मिलेगा तो इस रास्ते से लीक होता जाएगा। तो टी ट्यूब प्लेस करके हम बाइल को बाहर ड्रेन करते रहते हैं टिल द टाइम इन्फ्लेमेशन सेटल्स। 7वें दिन हम टी ट्यूब के थ्रू एक कंट्रास्ट देते हैं। कंट्रास्ट दे के देखते हैं कि क्या फ्री फ्लो है, क्या बाइल जो है, जो कंट्रास्ट जो है वो इजीली ड्यूडेनम में जा रहा है कि नहीं जा रहा, और कोई लीक मौजूद है कि नहीं। अगर इजीली ड्यूडेनम के अंदर जा रहा है, लीक नहीं है, तो इस टी ट्यूब को हम निकाल देते हैं। दूसरा अहम फ़ायदा इसका ये होता है कि अगर आप कोई स्टोन मिस कराएं, कोई छोटे साइज़ का स्टोन है, उस वक्त वो स्लिप हो गया था, वो नहीं निकल सका ड्यूरिंग द इंडेक्स सर्जरी, तो वो भी टी ट्यूब क्लेंजियोग्राम पे नज़र आता है और फिर आप टी ट्यूब के ज़रिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के ज़रिए उसको वहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये हम अब टी ट्यूब की प्लेसमेंट ख़ास तौर पे जब लैप्रोस्कोपिक CBD एक्सप्लोरेशन की जाती है, तो क्योंकि उस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं की जाती है और कोलिडोकोस्कोप डाल के अंदर से देख लेते हैं बजाय इंस्ट्रूमेंटेशन करने के, और एम्पुला का उस तरह का एडीमा नहीं होता, तो अब करंट जो गाइडलाइंस हैं उसके अंदर यूजली टी ट्यूब प्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मेन स्टे अभी भी ERCP की स्फिंक्ट्रोटमी है विद अ बलून स्वीप एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्टोन एंड सब्सिक्वेंटली लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी इन द सेम एडमिशन। और आइडली जो ERCP है वो जो हेपेटोपेनक्रेटिक बिलियरी सर्जन है उसको खुद करनी चाहिए अपनी। सो एज यू कैन सी इसमें आप देख सकते हैं कि स्टोन कैसे एम्पुला पे फंसा हुआ है, और जब आप स्फिंक्ट्रोटमी करेंगे और इस स्टोन को रिमूव करके बलून स्वीप करेंगे, देन यू विल बी प्रीटी श्योर, और फिर आप यहाँ से कंट्रास्ट देके कंफर्म कर लेते हैं कि कोई और मिस स्टोन पीछे नहीं रह गया। दिस इज़ यू कैन सी इनिशियली यहाँ पे नज़र आ रहा है स्टोन, ये एक गाइड वायर के ऊपर कटर है जिसकी वजह से ये स्फिंक्ट्रोटमी, यू कैन सी कि ये जो कॉटरी इस्तेमाल की है, ये उस कॉटरी की वजह से यहाँ पे ये थोड़ा whitish हुआ हुआ है because of the ampulla, और once the hole is there you can see the stone is being pulled out। इसको पीछे से ले गए हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, इसका बलून फैला दिया है, then it is going to pull out the stone and bring it out through the endoscope, and you can see here इसी तरह एक ये ERCP है, या आपका एंडोस्कोप है, and you can see multiple stones present। is not 1 2 3 4 and they all can be dealt with endoscopically, और you can do a stent placement। अगर स्टोन इतना बड़ा है कि आपको लगता है कि आपकी बास्केट में नहीं आएगा, स्वीप से नहीं आएगा, उसका साइज़ इतना बड़ा है, इट कैन नॉट कम आउट, तो फिर आप स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट इसलिए डाल देते हैं कि आपने बिलियरी ड्रेनेज करनी है ताकि ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाए, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो सुपर एडेड इन्फेक्शन है वो सेटल हो जाए, और जब एक दफ़ा ये चीज़ हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद आप सर्जिकली यू कैन गो इन एंड रिमूव दीज स्टोन्स सर्जिकली एज वेल। सो सब्सिक्वेंटली the other common extrahepatic biliary disease that we are going to talk about is a choledochal cyst। traditionally जो ओरिजिनल एनाटॉमिकल डिवीज़न है उसमें कोलिडोकस उस कॉमन हेपेटिक डक्ट को कहते हैं, और कॉमन हेपेटिक डक्ट में जब सिस्टिक डक्ट मिल जाए तो उसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। लेकिन अब कोलिडोकस पूरी को लिए, दिस इज़ द लैटिन नेम फॉर कोलिडोकस, द पाइप इन विच देयर इज़ बाइल, the pipe which is connecting the liver with the intestine, choledochus।
सिस्ट कहाँ बनती हैं? ये डिज़ीज़ है वॉल की, और ये डिज़ीज़ यूजली कंजेनिटल है, फीमेल्स में ज़्यादा होती है बनिस्बत मेल के। और अगर आप इसका उस तरह से देखें इसकी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन को, तो कहते हैं कि जो अश्केनाज़ी ज्यूज़ हैं उनके अंदर कोलिडोकल सिस्ट होने का इम्कान सबसे ज़्यादा है दुनिया की किसी भी रेस के मुकाबले में। So a coledocal cyst is a cystic dilatation anywhere in the biliary tree. It can be intrahepatic part of the biliary tree, it can be extrahepatic part in the biliary tree. Usually इसकी prevalence 1 in 100,000 है, 10 in a million है। कुछ फार ईस्टर्न कंट्रीज़ में ये थोड़ी ज़्यादा कॉमन है, फीमेल प्रीपोंडेंस है, 3 to 4 times मोर कॉमन है, और सब्सिक्वेंटली कोलेंजियोकार्सिनोमा डेवलप होने का काफ़ी इम्कान है। तो कोलिडोकल सिस्ट को एक प्री मेलिग्नेंट कंडीशन समझा जाता है, और इसीलिए ये जब पहले कोलिडोकल सिस्ट की ट्रीटमेंट ये थी कि आप सिस्ट के साथ एंट्रोस्टमी कर देते थे, सिस्ट वॉल के साथ आप इंटेस्टाइन का एक पोर्शन ला के एनास्टमोस कर देते थे। मगर बाद में सब्सिक्वेंटली देखा गया कि अगर आप सिस्ट वॉल को पीछे छोड़ के आए तो वहाँ कोलेंजियोकार्सिनोमा डेवलप होता है। तो अब करंट गाइडलाइंस यही है कि यू हैव टू एक्साइज द सिस्ट इफ़ इट इज़ पॉसिबल and then do an biliary enterostomy। क्लासीफाई कैसे करते हैं? क्लासीफाई ये टुडानीज क्लासिफिकेशन है, जिसमें जो टाइप 1 है, टाइप 1 इज द डायलिटेशन ऑफ ओनली द एक्स्ट्राहेपेटिक बाइल डक्ट। ठीक है, ये सिस्टिक हो सकती है, ये सेकुलर हो सकती है, ये फ्यूसिफॉर्म हो सकती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन। 80 to 90% आर ओनली इन्वॉल्विंग द एक्स्ट्राहेपेटिक बाइल। टाइप 2 जो है ये डाइवर्टिकुलम है, इसको सिर्फ सीबीडी का यूजली ये सुप्राडुनल पार्ट में होता है और एक वॉल्व को सिर्फ इन्वॉल्व करता है। जो टाइप 3 है ये इंट्राडुनल जो पोर्शन ऑफ सीबीडी का है, जो सबसे छोटा पोर्शन है, जब ये उसको इन्वॉल्व करता है तो इसको हम कोलिडोको सील ऑफ द इंट्राडुनल पोजीशन ऑफ सीबीडी, इसको कोलिडोको सील वहाँ की कहते हैं। टाइप 4 में बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्राहेपेटिक डक्ट डायलिटेशन है। 4A में इंट्रा एंड एक्स्ट्राहेपेटिक सिस्ट है, 4B में मल्टीपल एक्स्ट्राहेपेटिक सिस्ट है, इसको टाइप 4 कहते हैं। ये सेकंड मोस्ट कॉमन है कंडीशन आफ्टर एक्स्ट्राहेपेटिक। और जब मल्टीपल इंट्राहेपेटिक सिस्ट होती हैं सिर्फ, तो उसको हम क्रोलीज डिजीज़ कहते हैं। इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। टाइप 1 हमें पता है कि सिर्फ एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी चैनल का है, ये सेकुलर हो सकता है, ये फ्यूसिफॉर्म हो सकता है, और ये सिस्टिक हो सकती है। ठीक है। टाइप 2 हमने कहा था कि एक डाइवर्टिकुलम होता है। डाइवर्टिकुलम का मतलब है सिर्फ एक वॉल जो है ना सीबीडी की वो इन्वॉल्व है, एक वॉल। ठीक है। टाइप 3 इज द इंट्राडुडनल पोर्शन विच हैज दिस डायलिटेशन, द इंट्राडुडनल पोर्शन। टाइप 4A में बोथ इंट्राहेपेटिक एंड एक्स्ट्राहेपेटिक डायलिटेशन है। टाइप 4B इज ओनली एक्स्ट्राहेपेटिक विद बट मल्टीपल। टाइप 4A में मल्टीपल है, बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्राहेपेटिक। टाइप 4B में भी मल्टीपल है बट ओनली एक्स्ट्राहेपेटिक। व्हेन इट इज मल्टीपल एंड ओनली इंट्राहेपेटिक, फिर हम इसको क्रोलीज डिजीज कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिडोकल सिस्ट के लिए कौन कौन सी हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, और पहले हम उनको इमेजिंग पे डायग्नोस कैसे करते हैं। पैथोजेनेसिस, जैसे कि हमने पहले बात की कि ये यूजली कंजेनिटल है, और हमें पता है कि डक्ट्स जो बॉडी में कैसे बनती हैं। बनाने के लिए पहले एक पूरी रॉड बनती है सेल्स की, और उसके बाद जो है वो अंदर से हॉलो आउट और कैनुलेशन उसकी होना शुरू होती है। तो जब अनइक्वल प्रोलिफरेशन होती है एम्ब्रियोनल बिलियरी एपिथेलियल सेल की बिफोर द कैनुलेशन इज कंप्लीट, तो फिर ये वहाँ पे डायलिटेशन हो जाती है। समटाइम्स लोगों का ये ख्याल है कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में फीटस को अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी शायद ये कोलिडोकल सिस्ट डेवलप करता है। एक्वायर्ड के बारे में भी, एक्वायर्ड की भी बेसिकली जो रीज़न है वो भी कंजेनिटल, वो एनोमलस बिलियो पेनक्रियाटिक जंक्शन, जो जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट मिलती हैं ड्यूड्रम में एंटर होने से पहले, अगर वो जंक्शन एनोमलस हो, नॉर्मल एनाटमी को फॉलो ना करता हो, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। और दिस इज सेड टू बी ऑल्सो प्रीकर्सर ऑफ मलिग्नेंसी इन दैट एरिया। यूजली चूँकि ये कंजेनिटल कंडीशन है, यंगर एज ग्रुप में 10 साल तक के बच्चों में
अर्ली प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सिस्ट इटसेल्फ एंड ऑल्सो बिकॉज कि किस किस्म की हेल्थ केयर सिस्टम में मौजूद है, उस बच्चे को कब मौका मिला है किसी डॉक्टर के पास जाने का। तो ये जो बच्चे हैं, ये younger age group के जो लोग हैं, they present with right upper quadrant pain, they have a clinically palpable mass in the upper quadrants, they have jaundice, they have congenital hyperbilirubinemia, they have repeated attacks of cholangitis। जाहिर है कि जब डायलिटेशन होगी कॉमन बाइल डक्ट की, डायलिटेशन की वजह से स्टेसिस होगा, और जहाँ पे भी स्टेसिस होता है बॉडी के अंदर, यूरिन ट्रैक्ट में स्टेसिस है, इन्फेक्शन होगा, बिलरी ट्रैक्ट में स्टेसिस है, इन्फेक्शन होगा, रिकरेंट कोलिंजाइटिस होगा, एंड ऑफ कोर्स पैनक्रेटाइटिस एज वेल कैन बी अ प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ दिस कंडीशन। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले वंस अगेन, क्योंकि ईजीएस्ट इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है वो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है। तो अब हम कहते हैं कि ये टाइप 3 और टाइप 5 सिस्ट को ढूंढना इसके लिए बड़ा मुश्किल है। टाइप 3 कौन सी, अगर आप याद करें, टाइप 3 इज द इंट्राडूडनल पार्ट, जो इंट्राडूडनल लोअर मोस्ट पार्ट है उसको ढूंढना एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे तकरीबन नामुमकिन है। और जो टाइप 5 है जिसके अंदर मल्टीपल इंट्रापैटिक सिस्ट होती हैं, उसको भी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में ढूंढेगा, वो ये कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि इंट्रापैटिक बिलरी डक्ट जो है वो डायलेटेड है, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि सिस्ट। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, और ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है, ये टाइप 3 के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। जब आप डूडेनम के अंदर अल्ट्रासाउंड डालते हैं, वहाँ से ढूंढा जा सकता है कि वहाँ पे जो इंट्राडूडनल पोर्शन है सीबीडी का वो डायलेट हुआ। देन हीडा स्कैन, देन सीटी प्लस विद plus minus CT cholangiography, MRCP is the investigation of choice, ERCP can also be performed if MRCP is not available, then diagnostic laparoscopy sometimes may have to be done। So आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है। जब आप एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर लगा देते हैं और इस ट्रांसड्यूसर से फिर वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जाती हैं, एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई, सी इट इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द malignancies ऑफ द लोअर एंड ऑफ द CBD एंड ऑल्सो फॉर malignancy ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये ल्यूमन के अंदर ट्रांसड्यूसर है और ये स्टोन इसने आइडेंटिफाई किया। आई कुड नॉट फाइंड, आई एम सॉरी, एन इमेज ऑफ कोलिडोकल सिस्ट विद अल्ट्रासाउंड। Then various imaging techniques can give us a whole of the anatomy of the region। और ये जो हमने अभी टुडानीज क्लासिफिकेशन की बात की है, जिसमें टाइप 1 है, टाइप 1 के अंदर सेकुलर है, फ्यूसिफॉर्म है और सिस्टिक डायलिटेशन है ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट ऑफ द एक्स्ट्रा हेपेटिक्स। कॉमन बाइल डक्ट टाइप 1 में है, टाइप 2 में हमें पता है कि वो कैसे इन्वॉल्व करती है। टाइप 3 वी नो इज इंट्राडूडनल, देन टाइप 4 इज हैविंग बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रापैटिक मल्टीपल डायलिटेशन, टाइप 4b इज हैविंग बोथ multiple extrahepatic dilatations, and type 5 is when there are multiple intrahepatic dilatations of the common bile duct। So आप ये देख सकते हैं cystic, secular, fusiform, then diverticulum type 2 which involves only one wall, then intraduodenal portion, then both intrahepatic and extrahepatic, then only extrahepatic multiple dilatations and only intrahepatic multiple dilatations, the Crowley's disease। So now we've diagnosed, what should we do, सर्जिकली कैसे करेक्ट करते हैं। जैसे हमने बात की कि पहले इंटरनल ड्रेनेज कर देते थे, सिस्ट और एंट्रोस्टमी ले आते थे, सिस्ट के साथ लाके इंटेस्टाइन का, यूजली जेजुनम का एक लूप लाके एनास्टमोस कर देते थे, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थे और जो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी है वो परसिस्ट करता था। अब हम क्या करते हैं, हम सिस्ट को एक्सरसाइज करते हैं और हेपेटिको एंट्रोस्टमी करते हैं। जो हमारे पास रेमनेंट होता है बिलरी चैनल का, उसके साथ हम जेजुनम के रू लूप को लेके आते हैं। सो टाइप 1 वंस अगेन क्या है, टाइप 1 है एक्स्ट्राहेपेटिक विच इज सेकुलर, फ्यूसिफॉर्म और सिस्टिक। टाइप 2 विच इज
diverticulum, and type 4 which is multiple dilatations which can be इंट्रा एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक और ओनली एक्स्ट्रा हेपेटिक। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री है उसको एक्ससाइज कर देते हैं कोलिसिस्टेक्टमी के साथ, एक रुआ वाइल लूप बनाते हैं और जेजुनम को ऊपर ला के जो हेपेटिक डक्ट का रेमनेंट होता है उसके साथ एनास्टमोस करते हैं। समटाइम्स टाइप 4 में स्पेशली जब इंट्राहेपेटिक डायलिटेशन होती है तो जहाँ पे जिस सेगमेंट में वो डायलिटेशन होती है उसकी सेगमेंटल रिसेक्शन लिवर की भी करनी पड़ती है हमें साथ में। टाइप 3 के अंदर इफ़ दी एक्सपर्टीज इज़ अवेलेबल तो एंडोस्कोपिक स्फिंक्ट्रोटमी की जाती है और वहाँ से एंडोस्कोपिक रिसेक्शन कर देते हैं। जो वहाँ से स्फिंक्टर को खोल के स्फिंक्टर जब खुल जाता है तो वो जो डायलेटेड सेगमेंट है सिर्फ उस हिस्से की एंडोस्कोपिक रिसेक्शन कर देते हैं या समटाइम सिर्फ स्फिंक्ट्रोटमी कर देते हैं। और अगर सब्सिक्वेंटली देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी देन दीज kind of patients would be treated as a periampullary carcinoma and would end up having a Whipple's procedure, proximal pancreatic duodenectomy. All right, type 5 क्या है, मल्टीपल इंट्राहेपेटिक सिस्टिक डायलिटेशन जिसको हम क्रोलीज डिजीज़ कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे हमने 4A की सिस्ट्स को निकाला था, 4A की सिस्ट होती हैं जिनकी इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक दोनों थी, तो उसके अंदर जहाँ जहाँ पे जिस लिवर के सेगमेंट्स में उस सेगमेंट के साथ उस बाइल डक्ट को निकालना है। और अगर ये मल्टीपल सेगमेंट्स हैं और ज़्यादा सेगमेंट्स हैं और जो लिवर रेमिनेंट है इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद लाइफ देन दीज पेशेंट्स वुड सब्सिक्वेंटली रिक्वायर टू हैव अ लिवर ट्रांसप्लांटेशन डन। तो जो हम बार बार बात करें करते क्या है, रोन वाई हेपेटिकोजेजुनोस्टमी में फ़र्ज़ करें कि ये कॉमन बाइल डक्ट का वो हिस्सा है जहाँ पे कोलिडोकल सिस्ट मौजूद है, जो कि हमने कहा कि टाइप 1 या टाइप 2 है। टाइप 1 मोस्ट कॉमन है, तो हम ये पूरा पोर्शन एक्सरसाइज करते थे। ये सारी की सारी एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी डक्ट जो कि इन्वॉल्व है उस कोलिडोकल सिस्ट के अंदर उसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं विद हेल्दी मार्जिन्स। और यहाँ पे ये जो जेजुनम का नॉर्मल लूप आ रहा था डीजे फ्लेक्सर से कोई 15 से 20 सेंटीमीटर दूर हम जेजुनम को डिवाइड कर देते हैं, ट्रांजैक्ट कर देते हैं। इस लूप को फिर हम ये जो डिस्टल लूप है इसको पकड़ के हम ऊपर ले जाते हैं और हेपेटिको जेजुनोस्टमी करते हैं। यहाँ पे जो कॉमन हेपेटिक डक्ट्स आपस में या राइट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स का कॉन्फ्रेंस जो है उसके साथ जेजुनम के इस रूट को एनास्टमोस कर देते हैं और ये जो नॉर्मल पाथवे है उसको एंड टू साइड, दिस इज़ एंड टू एंड एंड दिस इज़ एन एंड टू साइड, दिस इज़ एंड टू एंड हेपेटिकोजेजुनोस्टमी। किसी भी एनास्टमोसिस को डिस्क्राइब करने का असूल ये है कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसका नाम पहले आता है और जो डिस्टल पार्ट है उसका नाम बाद में आता है। सो इट इज़ अ end to end hepaticojejunostomy and it is an end to side jejunojejunostomy, ठीक है। और ये क्या बना है, ये Y बन गया। रू जो है ना उस सर्जन का नाम था जिसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। अब सवाल ये है कि हम इस लूप को ला के आराम से लगा देते हैं। हम लूप हेपेटिकोजेजुनोस्टमी क्यों नहीं करते हैं? हम लूप हेपेटिकोजेजुनोस्टमी इसलिए नहीं करते हैं कि हम जो बिलरी पाथवे है और जो गैस्ट्रिक पाथवे है, जो इंटेस्टाइनल फ्लो है, जो फूड पाथवे है, जो फ्लूइड फ्लो है, उनको आप एक दूसरे से अलहदा करना चाहते हैं। अगर हम उसी रास्ते को इस्तेमाल करेंगे तो जो फूड है जो प्रॉपरली अभी डाइजेस्टेड नहीं है जेजुनम के अंदर, अगर वो बिलरी पैसेजेस के पास जाएगी तो फिर सम्प सिंड्रोम हो जाता है। जो वेजिटेबल के रेजिड्यू हैं, जो फाइबर्स हैं, जो फ्रूट के फाइबर्स हैं, जो दूसरे अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं वहाँ की, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बार बार वहाँ कोलेंजाइटिस होता है। इसको सम्प सिंड्रोम कहते हैं। तो इस सम्प सिंड्रोम से बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि जो बिलरी आउटफ्लो है इट शुड हैव अ सेपरेट पाथवे फ्रॉम दी फूड फ्लो। और ये चूँकि ये लिम्ब इतना लंबा रखा जाता है कि अगर फूड किसी तरीके से यहाँ से इस एनास्टमोटिक पार्ट तक नहीं पहुँच सकती, और चूँकि ये आइसोपेरिस्टाल्टिक है, ये यहाँ से पेरिस्टालसिस इस तरफ आना है, यहाँ से पेरिस्टालसिस इस तरफ आना है, एंड सब्सिक्वेंटली दे वुड मिक्स ओवर हेयर विद नो हार्म टू दी एनास्टमोसिस।
कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, हमने जैसे कहा कोलेंजाइटिस हो सकती है, देयर कैन बी बिल्ली स्टोन फॉर्मेशन जहाँ पे आपने एनास्मोसिस किया है। एनास्मोटिक स्ट्रक्चर इज़ अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, जहाँ पे भी आप एनास्मोसिस करते हैं हीलिंग जो होती है वो हमेशा उसके अंदर फाइब्रोसिस होता है और वहाँ पे स्ट्रक्चर बनने का इम्कान काफ़ी रहता है। इंट्रापैटिक बिलियरी डक्ट डायलेटेशन हो जाएगी अगर प्रॉपर आउटफ्लो नहीं होगा, और सब्सिक्वेंटली अगर आपने पूरी की पूरी कोलिडोकल सिस्ट को एक्सरसाइज नहीं कर पाए और कुछ पोर्शन छोड़ के आए हैं तो उसमें मेलिग्नेंसी होने का इम्कान हो सकता है। So thank you very much once again. If there are any queries, I would be very happy to answer them.